Hello everyone, welcome to lecture 6 of the chapter of solution in chemistry class 12. I am Pankaj Kapadia, BTech IIT Delhi, Director IIT Tapasya Patna. So I have already shared with you the assignment sheet on my YouTube channel in various lecture segment, and I will take up a few questions from the sheet itself. So first of all, there is a subjective section in which we will take up question number 5, 8, 10, 12, 14, 15, 18 and 22. So coming on to question number 5, the question says a liquid A has a vapor pressure of 250 millimeters of mercury and another liquid B has a vapor pressure of 325 millimeters of mercury. Alright, at 50 degrees centigrade. A solution of A and B was prepared with mole fraction of A as 0.6. And this mixture had a vapor pressure of 340 millimeters. So it is given that mole fraction of A in liquid phase is 0.6 and the solution has a vapor pressure of 340 millimeters of mercury. Okay. Now the next part it says, does this solution obeys Raoult's law? Is the mixing process of A and B exothermic or endothermic? So first of all, we would like to check whether this solution is an ideal solution or not. So according to Raoult's law, the vapor pressure of the solution should be, we know that P naught A XA plus P naught B XB. Now if you calculate, this turns out to be 150. Alright, we can very easily calculate it, there is no problem. And next, if I take this comes out to be 130. So the total pressure comes out to be 280 millimeters of mercury according to Raoult's law. According to Raoult's law, the total pressure is 280 millimeters of mercury and the total pressure given is 340. So you can clearly see that the total pressure of the solution is greater than what we can calculate from the Raoult's law. And this is a case of positive deviation. We have already discussed in lecture 5 that when the vapor pressure is greater than the Raoult's law pressure, the deviation is said to be as a positive deviation. And for positive deviation, the delta H mixing is positive. So therefore this reaction is an endothermic reaction. This mixing is an endothermic mixing. So now we have both the answers. The first question was, does it obeys Raoult's law? It does not obey Raoult's law, because according to Raoult's law the pressure should have been 280 millimeters of mercury and actually the pressure is given to be 340 millimeters of mercury. And since it is a case of positive deviation, therefore delta H mixing will be positive, hence the mixing will be endothermic. Alright. Coming on to the next question, question number 8. It says 1.32 grams of a non-volatile solute A is dissolved in 110 grams of acetone at 20 degrees centigrade. Next, it says the vapor pressure of the solution is 182.5 torr. The solution has a vapor pressure of 182.5 torr. Next, the vapor pressure of pure acetone is 185 torr. The vapor pressure of pure acetone is 185 torr. Next, it has two parts in the question. The first question is, what will be the boiling point of the solution? Solution का boiling point क्या होगा? And second part is, what is the molecular mass of A? It is given as boiling point of pure acetone is 56 degrees centigrade
and the Kb of acetone is given to be 1.72 Kelvin kg per mole. All right. So this question says कि 110 ग्राम एसीटोन में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मास 1.32 ग्राम्स है वो हम मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 182.5 हो जाता है और प्योर एसीटोन का वेपर प्रेशर 185 टॉर्क गिवन है। प्योर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 56 और आपको केबी गिवन है 1.72 केल्विन केजी पर मोल केबी ऑफ एसीटोन। तो देयरफॉर हमें दो चीजें पता करनी है, पहला मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए और दूसरा boiling point of the solution. So we can very easily calculate molecular mass of A. How come? You can see we know that P naught minus PS upon P naught is equal to mole fraction of solute. So 185 minus 182.5 upon 185, this should be equal to number of moles of solute, mass upon molar mass, upon number of moles of solute plus number of moles of solvent and एसीटोन का मोलेकुलर मास हो जाएगा 58। तो इस एक्सप्रेशन से आप सॉल्यूट का मोलर मास बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3 and therefore it is the smallest ketone और यहां से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट फाइनल माइनस बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है विच इज इक्वल टू Kb इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकालेंगे? अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इनटू वांट ऑफ फैक्टर। चूंकि सॉल्यूट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है देयरफॉर वांट ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में आपको सब कुछ गिवन है। आप इस एक्सप्रेशन से मॉलिक्यूलर मास निकाल चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप निकाल चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को यहां यूज कर लेंगे तो आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जो आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में है। Now coming on to question number 10, it says that the freezing point of a solution containing 50 cc of ethylene glycol, ethylene glycol का वॉल्यूम गिवन है 50 cc, all right, in 50 grams of water, सॉल्वेंट वाटर है और वाटर का मास गिवन है 50 grams. The freezing point is given to be minus 34 degrees centigrade. The question says that the freezing point of a solution containing 50 cc of ethylene glycol in 50 grams of water is found to be minus 34 degrees centigrade. Assuming ideal behavior, calculate the density of ethylene glycol. ethylene glycol का density निकालना है और kf of water given है। पानी का जो kf है वो गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी इंटू I। ऑलराइट, डेल TF विल बी इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, 0 माइनस माइनस 34 क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी कैसे निकालेंगे? मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। सोल्यूट हमारा है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH CH2OH, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 62। तो हमें वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी निकालना है। तो हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी विल गिव यू मास। मास को यदि मोलर मास से डिवाइड कर दे तो मोल्स,
और मोल्स को यदि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से डिवाइड कर दे तो मोलालिटी, और चूंकि सोल्यूट के बारे में कुछ नहीं पता है तो वांट ऑफ फैक्टर 1। अगेन आप इस एक्सप्रेशन की सहायता से, आपके पास सब कुछ पता है, द ओनली थिंग विच यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट इज डेंसिटी, और जो डेंसिटी आएगा उसका यूनिट होगा ग्राम पर सीसी या ग्राम पर ml। ऑलराइट, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन सेज a very small amount of a non-volatile solute, bracket में given है, that does not dissociate, is dissolved in 56.8 cc of benzene whose density is 0.889 grams per ml. So now we have a non-volatile solute whose mass is not known. We have mass of benzene in the form of volume into density, which is 56.8 centimeter cube into density is 0.889. So we have mass of solute which is unknown, mass of benzene यानी कि solvent is given in the form of density into volume. Next, at room temperature the vapor pressure of this solution is 98.88. The solution has a vapor pressure of 98.88 torr. All right, and that of pure benzene is 100 torr. So the vapor pressure of pure benzene is 100 torr. All right, find the molality of this solution. First question, and the second question is, if the freezing point of this solution is 0.73 degree lower than that of benzene, del TF is given to be 0.73 Kelvin or degree centigrade, whatever. What is the value of molar freezing point, molar depression constant of benzene? So you have to calculate the value of Kf for benzene. Now we will take up this question. First of all, we have data of vapor pressure and we have to calculate molality. हम सब जानते हैं कि वेपर प्रेशर से मोल फ्रैक्शन रिलेटेड होता है, तो पहले हमें इस वेपर प्रेशर के डेटा से P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, दिस विल गिव यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये लगभग 0.0112। ऑल राइट, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चूंकि यहां बेंजीन है तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, देयरफॉर द मोलर मास कम्स आउट टू बी 78। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग मोलालिटी निकाल लेंगे कि मोलालिटी कितना होगा। नेक्स्ट, डेल टीएफ आपको गिवन है, हम सब जानते हैं कि डेल टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी, चूंकि नॉन डिसोसिएटिव ऑलरेडी कह दिया है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप देखिए इस डेटा से P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का रिलेशन यूज करके हम यहां से मोलालिटी निकाल लेंगे, और मोलालिटी की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो हमें KF मिल जाएगा, और उस KF की यूनिट्स होंगे केल्विन केजी पर मोल। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे यहां डिस्कस करना चाहता हूं, प्रोसेस के बारे में, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस के बारे में। आप देखिए मैं हर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते हुए मैं सर्टेन डेटा नोट कर रहा हूं जो मेरे लिए काम के हैं। इसको हम लोग कहते हैं, मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि गेटिंग रिड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन से जितना जल्दी आप फ्री हो जाएंगे आप सॉल्व करने की दिशा में उतना ज्यादा बढ़ जाएंगे।
क्वेश्चन, ये सारी बातें लिखने के बाद अब मुझे दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये होता है गेटिंग रिड ऑफ द क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि क्या क्या हमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें मोलालिटी निकालना था और केएफ निकालना था। हमें डेटा दिया है वेपर प्रेशर का, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर के डेटा से मोलालिटी कैसे निकल सकता है। फिर वहां पर लॉजिक आएगा कि वेपर प्रेशर से रिलेशन तो मोल फ्रैक्शन का होता है, लेकिन मोल फ्रैक्शन का रिलेशन मोलालिटी से होता है। तो वो बेसिकली इसको आप कह सकते हैं ये एल्गोरिदम है कि किसी क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है। किसी क्वेश्चन को अटैक करने का सिंपल तरीका है कि आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, और अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट आप एक चीज और देखिएगा कि मास ऑफ बेंजीन का कोई यूज नहीं हुआ। मास ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो पता कर भी सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट भी अगर आपसे पूछ देगा तो आप कर सकते हैं पता, लेकिन उसके लिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी पता होना चाहिए। तो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन और आउटकम जो चाहिए, इन दोनों को रिलेट करने की कड़ी ही हमें ढूंढनी होती है। तो क्वेश्चन से जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उतना ही बेटर प्लेस्ड हो जाते हैं। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इट सेज फेनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म अ डाइमर। फेनॉल डाइमराइज होता है, कितना होता है डाइमराइज ये नहीं पता, पूरा डाइमराइज नहीं होता है, ये क्वेश्चन ने क्लियर किया है मोर और लेस। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 into 10 to the power minus 3 kg of phenol, so mass of phenol is given 20 ग्राम्स में कह सकता हूं, 20 into 10 to the power minus 3 kg को हम 20 ग्राम्स कह सकते हैं। In 1 kg of benzene, mass of benzene is given 1 kg, यानी कि 1 kg बेंजीन में 20 ग्राम फेनॉल डाला हुआ है और फेनॉल कुछ हद तक डाइमराइज हो रहा है। नेक्स्ट, हैज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड बाय 0.69, सो डेल टीएफ इज गिवन टू बी 0.69 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आपको गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ फेनॉल व्हिच हैज डाइमराइज्ड गिवन दैट केएफ ऑफ बेंजीन इज 5.12। तो केएफ ऑफ बेंजीन आपको गिवन है और आपसे फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो डाइमराइज हो पूछा है, यानी कि एक तरह से डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन पूछा है, राइट। तो अगेन सेम लॉजिक, सबसे पहले अगर फेनॉल डाइमराइज होगा, कोई भी चीज डाइमराइज होता है तो वो ऐसे होता है। अगर ये 1 था तो ये 0, अगर इसका डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन हम अल्फा मान लें तो ये अल्फा बाई 2 हो जाता है। तो वांट ऑफ फैक्टर आ जाता है 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने वांट ऑफ फैक्टर बताया था आपको लेक्चर नंबर 2 में, शायद 3 में, 2 में। तो आप यहां से वांट ऑफ फैक्टर का रिलेशन डिग्री डाइमराइजेशन से निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी इंटू आई। मोलालिटी कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट को मोलर मास, फेनॉल का मोलर मास होगा 94, क्योंकि बेंजीन रिंग में H की जगह OH लगा होता है, यही होता है फेनॉल। तो इसका मोलर मास हो जाएगा 94। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1 दिया हुआ है और वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन से आपको सब कुछ पता है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा निकालना है, जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15. द क्वेश्चन सेज that 1.22 grams of benzoic acid is dissolved in acetone and benzene separately. See, 1.22 grams of benzoic acid is dissolved in benzene and
acetone separately. All right. The question says the boiling point of mixture with acetone increases by 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड. एसीटोन वाले का बॉइलिंग पॉइंट 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जबकि बेंजीन वाले का बॉइलिंग पॉइंट 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है. यानी कि बेंजीन के अंदर जब बेंजोइक एसिड डालते हैं तो वो 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है. आगे केबी दिया हुआ है एसीटोन का. केबी ऑफ एसीटोन इज गिवन टू बी 1.7 केल्विन केजी पर मोल और मास ऑफ एसीटोन भी दिया हुआ है 100 ग्राम्स. सिमिलरली केबी ऑफ बेंजीन भी गिवन है 2.6 केल्विन केजी पर मोल और मास ऑफ बेंजीन भी गिवन है 100 ग्राम्स. तो आपसे पूछा है फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन एसीटोन एंड बेंजीन सॉल्यूशन. एसीटोन सॉल्यूशन में और बेंजीन सॉल्यूशन में दोनों का बेंजोइक एसिड का मोलिकुलर मास क्या क्या होता है, क्या क्या है, ये पूछा है आपसे एंड कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर. तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो. देखिए अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी फिलहाल मैं वांट ऑफ फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं कर रहा हूं. क्योंकि अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर की बात कर दूंगा तो मोलर मास ऑटोमेटिकली हमें पता रहेगा. दूसरा डेटा है हमारे पास डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी अगेन मैं यहां भी वांट ऑफ फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पूछने का मतलब ही है कि वो वांट ऑफ फैक्टर को कंसीडर करते हुए मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है. क्योंकि अगर वो वांट ऑफ फैक्टर कंसीडर नहीं करेगा फिर तो बेंजोइक एसिड का सिंपल मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं 78 प्लस 44 122. एनीवे तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से मॉलिक्यूलर मास आता है 122, जबकि यहां से मॉलिक्यूलर मास आएगा कैलकुलेट करके 244. तो इस एसीटोन सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है 122 और बेंजीन के सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है 244. तो एक ही सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि यहां प्योर बेंजोइक एसिड है और यहां 100% डाइमराइजेशन हो गया. जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे पूरी तरह से और वो भी 100% डाइमराइजेशन. याद कीजिए मैंने आपको बताया था वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, ये नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास है. तो वास्तव में यहां से दोनों जगह से जो मोलर मास निकला है वो एबनॉर्मल मोलर मास है. चूंकि इस केस में नॉर्मल मोलर मास भी 122 हो और एबनॉर्मल भी 122 है, ये जस्टिफाई होता है इस तरीके से कि यहां पर ना तो एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ. जबकि यहां पर जो नॉर्मल मोलर मास वो तो 122 है, लेकिन जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो 244 है. वांट ऑफ फैक्टर हाफ है. ये तभी हो सकता है जब कंप्लीट डाइमराइजेशन हुआ. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किया जा रहा है ये कि आप बेंजीन के केस में बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन चूंकि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं तो वो डाइमराइज होता है. कितना डाइमराइज होगा ये अलग अलग सॉल्यूशन में वेरी करता है. इन दिस केस जो हमें डेटा गिवन है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एसीटोन सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड नॉर्मल मॉलिक्यूल है, उसका मोलर मास वही आ रहा है जो नॉर्मली बेंजोइक एसिड का मोलर मास होता है. जबकि बेंजीन सॉल्यूशन में इसका मोलर मास जो नॉर्मल मोलर मास है उसका डबल आ रहा है. ये इस बात का सबूत है कि बेंजीन सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड
कंप्लीट डायमेराइजेशन को गया है, वहां दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक हो गए हैं। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में द क्वेश्चन सेज x grams of a non-electrolyte compound having molar mass 200 is dissolved in 1 liter of solution, that is 0.005 molar NaCl in aqueous solution. So basically x ग्राम किसी सॉल्यूट का है जिसका मोलर मास 200 गिवन है, इसको हम डालते हैं 1 लीटर एक ऐसे सॉल्यूशन में जो 0.05 मोल पर लीटर NaCl में aqueous solution है। आगे, the osmotic pressure of this solution is found to be 4.92. osmotic pressure आपको गिवन है 4.92 एटमॉस्फेयर्स, और आपसे कह रहा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, assume complete dissociation of NaCl takes place and the solution behaves ideally, यानी कि NaCl का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीका है, एक तरीका तो सिंपल है, पाई बराबर CRT। अब वैसे तो I होता है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए I हो जाएगा 1, और ये सॉल्यूट NaCl डिसोसिएट होगा तो उसके लिए I हो जाएगा 2। तो मेरे पास दो तरीका है, या तो हम दोनों से अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के ऐड कर दें, क्योंकि एक तरह से C1 + C2 वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, या दूसरा तरीका है कि अगर हम NaCl को डिसोसिएट करा के सारे सॉल्यूट का एक कलेक्टिव निकाल लें मोलरिटी, तो भी हम कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीका यूज कर लूंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू RT। चूंकि R की वैल्यू हमें 0.082 पता है और टेम्परेचर भी 300 केल्विन पता है, प्लस NaCl के केस में 0.05 अपॉन 1, 0 इंटू 0.081 R की वैल्यू 300 केल्विन, और इसका वन ऑफ फैक्टर होता है 2। चूंकि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है 4.92 एटमॉस्फेयर, आप यहां से x आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम सीधा सॉल्यूट की बात कर लें, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट x अपॉन 200 ड्यू टू दिस अननोन सॉल्यूट, एंड NaCl को अगर हम ऑलरेडी वन ऑफ फैक्टर के साथ कंसीडर कर ले, सो दिस कम्स आउट टू बी x अपॉन 200 प्लस 0.1। ये आ गया मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसमें हमने NaCl का भी ख्याल रख लिया है, उसके डिसोसिएशन का भी ख्याल रख लिया है, और जो अननोन सॉल्यूट है उसका भी ख्याल रख लिया है। तो अब हम सीधा यूज कर लेंगे पाई बराबर CRT। पाई की वैल्यू 4.92 गिवन है, C की वैल्यू ये रही पूरी, x अपॉन 200 प्लस 0.1, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। तो अगर हम इसको यहां से सॉल्व करें, ये 24.6 होता है, तो 24.6 से ये 0.2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 0.1 अगर घटाते हैं तो यहां से x की वैल्यू 20 आ जाए। सो मास ऑफ सॉल्यूट टर्न्स आउट टू बी 20 grams, right? So this way you can get the answer. Now coming on to question number 22, the question says calculate the boiling point of a solution containing 0.61 grams of benzoic acid. Mass of benzoic acid is given 0.61 grams. In 50 grams of carbon disulfide, mass of carbon disulfide is given 50 grams. Assuming 84% dimerization, क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है, चूंकि कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मैंने पहले ही बताया था कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमराइज होता है, तो उसका परसेंटेज डाइमराइजेशन गिवन है 84%। ऑल राइट, द बॉइलिंग पॉइंट and Kb of CS2 is given to be 46.2
प्योर CS2 का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 46.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और Kb ऑफ CS2 भी गिवन है 2.3 केल्विन kg पर मोल। ऑलराइट, तो आपसे इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं डेल टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट फाइनल माइनस बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल इज इक्वल टू Kb इंटू मोलालिटी इंटू I। मोलालिटी कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे। बेंजोइक एसिड आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि दिस इज बेंजोइक एसिड, तो इसका मोलर मास 122 आ जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 50 अपॉन 1000। और चूंकि यहां डायमराइजेशन का केस है, तो डायमराइजेशन के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि वन ऑफ फैक्टर आ जाता है 1 माइनस अल्फा बाई 2। 1 माइनस अल्फा 84% गिवन है बाई 2। यहां से आप सॉल्व करके बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। नेक्स्ट वी विल टेक अप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, पैसेज नंबर 1। तो ये काफी बड़ा पैसेज है, पहले मैं इसको थोड़ा सा पढ़ता हूं। ये कहता है कि प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट चेंज व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू गेट होमोजेनियस सॉल्यूशन। These are called colligative properties. Applications of colligative properties are very useful in day-to-day life. One of its examples is the use of ethylene glycol and water mixture as an anti-freezing liquid in a radiator of automobiles. Now it says a solution M is prepared by mixing ethanol and water, and the mole fraction of ethanol in the mixture is 0.9. तो सबसे पहला जो हमारे पास काम का डेटा है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 0.9। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी 0.1। ऑल राइट, Kf की वैल्यू गिवन है वाटर और इथेनॉल दोनों के लिए। Kf ऑफ वाटर इज गिवन 1.86, Kf ऑफ इथेनॉल इज गिवन 2.0 केल्विन kg पर मोल। ऑलराइट, Kb भी दोनों के लिए गिवन है। पानी के लिए Kb हो जाएगा 0.52 एंड Kb ऑफ इथेनॉल विल बी गिवन एज 1.2 केल्विन kg पर मोल। ऑलराइट, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन, freezing point of water is 273 Kelvin, and the freezing point of ethanol is 155.7 Kelvin. Standard boiling point of water is 373 Kelvin. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम सबको पता है 373 केल्विन। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है 351.5 केल्विन। ऑल राइट, vapor pressure of pure water is given as 32.8 Kelvin. Sorry, millimeters of mercury, 32.8 millimeters of mercury. And vapor pressure of pure ethanol is given as 40 millimeters of mercury. All right. Molecular mass of water and ethanol is given 18 and 46. So the first question says, and it comes with a line, in answering the following questions consider the solution to be ideal dilute solutions and the solutes to be non-volatile and non-dissociative. Next, first question है कि freezing point इस solution का क्या होगा। तो freezing point निकालने के लिए हमें मोलालिटी चाहिए, और हमें दिया है मोलालिटी नहीं, हमें दिया है मोल फ्रैक्शन। Now ethanol and water both are liquids, तो अगर दोनों लिक्विड्स हैं तो उसमें सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, ये पता करने के लिए हमें देखना होगा किसके मोल्स ज्यादा हैं किसके मोल्स कम हैं। चूंकि इथेनॉल के मोल्स ज्यादा हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इथेनॉल जो है यहाँ सॉल्वेंट है और पानी जो है वो सॉल्यूट है, एंड देयरफॉर जो हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होगा उसके लिए मोलालिटी निकालना होगा।
तो मोलालिटी निकालने के लिए हम मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का रिलेशन यूज करेंगे। तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो कि 0.1 गिवन है, यहां पर सोल्यूट वाटर है, इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट इथेनॉल है और इसलिए आप इस एक्सप्रेशन का यूज करके मोलालिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। तो डेल टीएफ हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट फाइनल जो हमें निकालना है, और ये बराबर हो जाएगा के एफ। के एफ किसका यूज करेंगे? सॉल्वेंट का। यहां सॉल्वेंट कौन है? इथेनॉल। तो के एफ ऑफ इथेनॉल इज गिवन टू बी 2 और मोलालिटी तो हम यहां से निकाल रख के डाल देंगे यहां पे, और 1/2 फैक्टर हो जाएगा 1। तो इस एक्सप्रेशन से मोलालिटी निकाल के आप यहां पुट कर देंगे, आपको फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आईआईटी 2006 में पूछा गया सवाल है, ये पूरा पैसेज ही पूछा गया है। प्रॉब्लम यहां पे है कि इस क्वेश्चन को यदि कोई सॉल्व नहीं भी करेगा तो भी इसका आंसर कर सकता था, क्योंकि जो ऑप्शंस गिवन हैं वो है 268.7 केल्विन, 268.5 केल्विन, 234.2 केल्विन एंड 150.9 केल्विन। तो चूंकि यहां सॉल्वेंट इथेनॉल है और इथेनॉल का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है 155.7, तो डिप्रेशन होने के बाद जो भी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो तो 150 से कम ही आएगा, 155 से कम ही आएगा, और 155.7 से कम केवल एक ही ऑप्शन है 150.9 केल्विन। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनेशन हॉल में करना हो तो आप बिना कोई इस बात सोचे सिर्फ ऑप्शंस देख के इसका आंसर 150.9 कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को सुन के हमारे मन में डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है P0A XA प्लस P0B XB। और अगर चूंकि आपको P0A भी पता है, P0B भी पता है, XA भी पता है, XB भी पता है, तो आप यहां से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि क्वेश्चन के पैसेज में लास्ट में गिवन था, क्या गिवन था? इन आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसीडर द सॉल्यूशन टू बी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूट्स टू बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको पता है कि बोथ इथेनॉल एंड वाटर आर वोलेटाइल, आपको यहां मान के चलना होगा कि ये नॉन वोलेटाइल है। यहां सॉल्यूट पानी है तो पानी नॉन वोलेटाइल है। अगर मैं पानी को A से डिनोट करता हूं तो ये वाला टर्म पानी वाला कैंसिल हो जाएगा। तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी सिंपल P0B XB। अगर मैं A को वाटर कह रहा हूं और B को इथेनॉल कह रहा हूं। खास बात एक और है, आईआईटी ने जो ऑप्शन दिया था उसमें पहला ऑप्शन वही आया था जो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे P0A XA प्लस P0B XB। तो जिस किसी भी व्यक्ति ने थोड़ा सा ही उस लाइन को ओवरलुक कर दिया जिसमें कहा गया था कि सॉल्यूट्स आर नॉन वोलेटाइल, तो वहां पर ये क्वेश्चन को गलत कर बैठेगा जानते हुए भी। दूसरी बात, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नहीं होंगे तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट में कमी वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल ही कैसे होगा? तो ये भी एक हिंट था कि आपको यहां पर सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल लेना है, एंड देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालते वक्त वास्तव में हमें वेपर प्रेशर ऑफ ओनली सॉल्वेंट ही निकालना था। अब इसका थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है कि वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बिकम्स 0.9। कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में हम पानी मिलाते गए जिससे कि अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो गया 0.9, तो डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हो जाएगा 0.1। और अब इस सॉल्यूशन में पानी सॉल्वेंट हो जाएगा और इथेनॉल सॉल्यूट हो जाएगा, राइट? तो पूछा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे, अब देखो यहां पर सॉल्यूट चेंज हो गया है, सॉल्वेंट चेंज हो गया है, और हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है।
तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले का यूज करके हम पहले इस सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालेंगे। यहां पर सॉल्वेंट पानी है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह 18 हो जाएगा। आप यहां से मोलरिटी निकाल लेंगे और फिर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, इज इक्वल टू Kb इंटू मोलरिटी इंटू I की वैल्यू 1। अब आप इस एक्सप्रेशन से मोलरिटी की वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक खास बात, वहां पर चूंकि एक ही ऑप्शन था 155.7 से नीचे, इसलिए हम बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते थे 150.9 केल्विन। यहां पर 373 से ऊपर 2-3 ऑप्शंस हैं, तो यहां पर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करके यहां आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट वी विल टेक अप क्वेश्चन नंबर्स 8, 14, 18, 32 and 23 from the objective section. So first we will discuss question number 8 from the objective question. It says organic liquids A and B have a vapor pressures P01 and P02 as pure liquids at 80 degree centigrade. All right. A और B दो लिक्विड्स हैं जिनका वेपर प्रेशर P01 P02 है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। A mixture of two liquids behaving ideally and boiling at 80 degree centigrade has a mole fraction of A as 0.16. तो ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A गिवन है और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 80 डिग्री, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 80 डिग्री, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हम जानते हैं कि P01 P0A XA प्लस P0B XB ये हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और आपको गिवन है कि P01 माइनस P02 इज इक्वल टू 472 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, स्टैंडर्ड 10। आप यहां से P01 और P02 निकाल सकते हैं, आपसे P01 ही पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The question number 14 says the Van der Waals factor for a 0.1 mole per liter Na3PO4 solution is 3.82. Calculate degree of dissociation. So if I take question number 14, Na3PO4 एक सोल्यूट है जो डिसोसिएट होगा 3Na प्लस और PO4 ट्रिपल माइनस में। अगर ये 1 माइनस अल्फा है तो ये 3 अल्फा और अल्फा हो जाएगा, तो वान डर वाल्स फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा, जो कि गिवन है 3.82। यहां से आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे 0.94, यानी कि 94% डिसोसिएट होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज द रेशियो ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ K4 FeCN6 एंड K3 FeCN6। आपको दो सॉल्यूशंस गिवन हैं, एक K4 FeCN6 पोटेशियम फेर्रोसाइनाइड जो डिसोसिएट होता है 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस में, इसका वान डर वाल्स फैक्टर आ जाएगा 4 + 1 5। दूसरा एग्जांपल है K3 FeCN6 यानी कि पोटेशियम फेरिक साइनाइड, तो इसका वान डर वाल्स फैक्टर आ जाएगा 3 + 1 4। तो अगर इनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड, तो वान डर वाल्स फैक्टर के रेशियो के बराबर ही होगा, व्हिच विल बी 1.25 5/4। जो उनके वान डर वाल्स फैक्टर का रेशियो होगा वही उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो होगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 23 सेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.025 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 0.025 मोलरिटी गिवन है एक वीक एसिड HA का, और इसका
फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है -0.06 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑल राइट, द परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है आपसे और KF की वैल्यू आपको गिवन है 1.86। अगेन हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, HA जो डिसोसिएट होगा, चूंकि ये वीक एसिड है तो थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा। अगर ये 1 था तो ये 0 था, अगर ये 1 माइनस अल्फा होगा तो ये अल्फा अल्फा होगा, तो वान हाफ फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। नेक्स्ट अगेन हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे डेल TF, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 माइनस 0.06, दिस विल बी इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। यहां पर मोलालिटी दिया है, मोलालिटी नहीं दिया है, लेकिन डेंसिटी भी नहीं दिया है, तो मोलालिटी को हम मोलालिटी के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। ये अजम्पशन मैंने पहले ही बताया था, और वैसे क्वेश्चन में मेंशन भी है कि आपको मोलालिटी को मोलालिटी के इक्वल अज्यूम कर लेना है। तो डेल TF बराबर KF इंटू मोलालिटी इंटू I की वैल्यू 1 प्लस अल्फा, आप यहां से वैल्यू पुट करके अल्फा की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और अब एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। It says the values of observed and calculated molar mass of silver nitrate are 92.64 and 170 respectively. Calculate the degree of dissociation. तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात अगर करें तो सिल्वर नाइट्रेट डिसोसिएट अगर होगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, तो अगर ये 1 था तो ये 0, ये 1 माइनस अल्फा तो ये अल्फा अल्फा। तो आपको मैंने बता रखा है कि वान हाफ फैक्टर होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो बेसिकली नॉर्मल मोलर मास इज 170 and abnormal molar mass is 92.64. This will be equal to number of particles finally upon number of particles initially. यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 33। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। सबका कंसंट्रेशन 0.01 मोल पर लीटर है, तो पहला ऑप्शन है K4FeCN6, दूसरा ऑप्शन है Na3PO4, तीसरा ऑप्शन है Na2SO4 और चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। अब इन सब के ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर पूछा है आपसे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRTI। सबका C सेम है, R सेम है, T सेम है, तो जिसका I ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसका I आप कैलकुलेट करेंगे तो 5, इसका I आप कैलकुलेट करेंगे तो 4, इसका I आप कैलकुलेट करेंगे तो 3, और ग्लूकोज का I जो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पहले का ज्यादा होगा दूसरे से, दूसरे का ज्यादा होगा तीसरे से, और तीसरे का ज्यादा होगा चौथे से। यानी कि यहाँ कंपैरिजन ऑस्मोटिक प्रेशर का नहीं है, यहाँ कंपैरिजन केवल और केवल वान हाफ फैक्टर का। सो दिस इज इट। चैप्टर मेरे ख्याल से समाप्त होता है, आपको क्वेश्चंस करने में भी मदद मिल जाएगी। एंड नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।